स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 4 का द सेंट्रल इस्लामिक लैंड द क्रूजेड्स। इन मेडिवल इस्लामिक सोसाइटी क्रिश्चियन वर रिगार्डेड एज द पीपल ऑफ बुक अहल किताब सिंस दे हैड देयर ओन स्क्रिप्चर द न्यू टेस्टामेंट और इंजील। मध्यकालीन जो इस्लामिक जो समाज जो था उसके अंदर जो ईसाई थे उनकी अपनी अलग से पुस्तक थी और अलग से उनका स्क्रिप्चर वो था। क्रिश्चियन वर ग्रांटेड सेफ कंडक्ट अमन वाइल वेंचरिंग इनटू मुस्लिम स्टेट एज मर्चेंट्स पिलग्रिम्स एम्बेसडर एंड ट्रैवलर। These territory also included those which were once held by Byzantine Empire। यानी कि मेनली क्या है कि उस टाइम के ऊपर जो क्रिश्चियन थे वो बिल्कुल बहुत ही शांति से जो मुस्लिम वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ पर व्यापार में या तीर्थ यात्रा के लिए राजदूत के तौर पर घूमते रहते थे। These territory also include those which were once held by the Byzantine Empire, notably the Holy Land of Palestine. Jerusalem was conquered by Arab in 638, but it was ever present in the Christian imagination as the place of Jesus, crucifixion and resurrection. मेनली जो ये जगह थी ईसाइयों के लिए क्या थी, पवित्र जगह है वो मानी जाती थी ईसा मसीह के द्वारा। This was an important factor in the formation of the image of Muslim Christian Europe. Hostility towards the Muslim world became more pronounced in the 11th century. Normans, Hungarians and some Slavs being converted to Christianity, and the Muslim alone remained as the main enemy। मेन वहाँ पे बढ़े और ख़ास तौर से वहाँ पे मुस्लिम है वो अकेले इनके क्या बन गए, एक शत्रु है। देयर वॉज ऑल्सो ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन द 11th century which contributed to the hostility between Christendom and the Islamic world। ये उनके बीच में एक क्या हो गया, संघर्ष का कारण बन गया। The clergy and the warrior class, first order C theme 6, were making efforts to ensure political stability as well as economic growth based on agriculture and trade। मेनली जो उनके एफर्ट्स थे, जो काम थे वो क्या थे भाई, जो उनके व्यापार का उसका सिस्टम था या कृषि का जो विकास था उसके ऊपर आधारित। द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन कॉम्पिटिंग feudal principality and the return to economic organization based on plunder were countered by the peace of God movement। जो उस टाइम पर जैसे कि जो प्लैंडरिंग वगैरह वो करते थे उससे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर है वो होता था। ऑल मिलिट्री वायलेंस वॉज फॉरबिडन इनसाइड सर्टेन एरिया नियर प्लेसेस ऑफ वर्शिप during certain period considered sacred in the church calendar and against certain vulnerable social groups such as churchmen and the common people। मेनली क्या है कि ये जगह ऐसी हो गई एक सामाजिक समूह के लिए जो बहुत ही सही थी और इसके अंदर द पीस ऑफ गॉड डिफ्लेक्टेड द एग्रेसिव टेंडेंसी of feudal society away from the Christian world and towards the enemy of God। It built a climate in which fighting against the infidels non-believer became not only permissible but also commendable। यानी कि वो लोग इसमें एक दूसरे के दुश्मन बन गए जो या तो उसको मानते थे या जो उसको नहीं मानते थे, इन दोनों का आपस में अपोजिशन स्टार्ट हो गई। In the death of 1092, the Malik Shah
The Seljuk Sultan of Baghdad was followed by the disintegration of his empire. This offered the Byzantine Empire Emperor Alexis I a chance to regain Asia Minor and northern Syria. For Pope Urban II, this was an opportunity to revive the spirit of Christianity. मतलब उसने अपने साम्राज्य को लंबे क्षेत्र तक बढ़ाने का विचार बनाया, जिससे पोप को ये चीज़ें ऐसा लगा कि भाई इनको हम रिवाइव वो कर सकते हैं. In 1095 the Pope joined the Byzantine Emperor in calling for war. और इसके लिए पोप ने क्या किया, बैजेंटाइन जो एम्परर था उसको आह्वान किया कि भाई हम युद्ध के लिए तैयार हैं. Holy Land between the name God to liberate the Holy Land between 1095 and 1291. Western European Christian plan the fort. War against Muslim city on the coastal plain of the Eastern Mediterranean. These wars were later designated as crusades. जो ये वॉर थे इनको क्या है, धर्म युद्ध के नाम से जाना गया. In the first crusade, soldiers from France and Italy captured Antioch in Syria. पहला जो धर्म युद्ध था जो 1098 से 99 के बीच में हुआ, वहाँ पे जो एंटियोक और सीरिया के ऊपर अधिकार कर लिया एंड क्लेम जेरूसलम, और जेरूसलम के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार कह दिया भाई है. Their victory was accompanied by the slaughter of Muslim and Jew in the city, chronicled by both Christian and Muslim. Muslim writer referred to the arrival of the Christian called फिरंगी. मेनली इनको क्या कहा जाता, जो वहाँ पर आते उनको फिरंगी, और फिरंगी एज एन फ्रैंकिश इन्वेजन. द फ्रैंक quickly established 4 crusader state in the region of Syria, Palestine collectively. These territories were known as Outermark, the land over sea, and later crusades were directed at its defense and expansion. The Outermark survived well for some time, but when the Turk captured Edessa in 1144, तुर्क जो थे उन्होंने 1144 में अदिसा पर अधिकार कर लिया. An appeal was made by the Pope for a second crusade. उसके बाद में पोप ने दूसरे धर्म युद्ध की अपील कर दी 1145 to 49. A combined German and French army made an attempt to capture Damascus, but they were defeated and forced to return home. After this, there was a gradual erosion of the strength of Outermark. Crusader zeal gave way to living in luxury and to battle over territory among the Christian rulers. सलाहुद्दीन, जिसको सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता था, created an Egypto-Syrian empire and gave the call for jihad. जो ये सलाहुद्दीन था इसने क्या किया, जिहाद का आह्वान कर दिया और होली वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन के खिलाफ धर्म युद्ध है वो शुरू कर दिया. एंड डिफीटेड देम इन 1187, और 1187 में क्या कर दिया, उनको पराजय. ही रीगेन जेरूसलम नियरली century after the first crusade. Record of the time indicate that Salahuddin treatment of the Christian population was humane, in marked contrast to the way in which Christian had earlier dealt with Muslim and Jain. Although he gave custody of the Church of the Holy Sepulchre to the Christian, a number of the Church of the Holy Sepulchre, a number of the church were turned into mosque, and Jerusalem once again became a Muslim city.
और उसके बाद में क्या हुआ, सभी जो जितने भी मस्जिद वगैरह थी सब एक्वायर कर ली गई, और जो ये जगह थी इसको मुस्लिम शहर अनाउंस है वो कर दिया गया। द लॉस ऑफ द सिटी promoted a third crusade in 1189, but the crusader gained little except for some coastal town in Palestine and free access to Jerusalem for Christian pilgrim. The Mamluk, the ruler of Egypt, इजिप्ट के जो शासक थे मैमलुक, finally drove the crusading Christian from all the Palestine in 1291. Europe gradually lost military interest in Islam and focused on its internal political and cultural development. उसने क्या है कि मेनली जो उस समय से लड़ाई वगैरह थी उस पर ध्यान हटा के और क्या किया गया, राजनीतिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट है वो किया गया। The Crusades left a lasting impact on two aspects of Christian-Muslim relation. One was harsher attitude of the Muslim state towards its Christian subject, which resulted from the bitter memory of the conflict as well as needs for security in area of mixed population. यानी कि जो ये धर्मयुद्ध हुए थे ना, इन्होंने अपने पीछे वो कड़वी बातें छोड़ दी जिसकी वजह से इनमें आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहा। The other was the greater influence of Italian mercantile community from Pisa, Geneva and Venice in the trade between the East and the West even after the restoration of Muslim power. यानी कि मेनली जो वहाँ की कम्युनिटी थी, खास तौर से जैसे कि पीसा की, जेनेवा की, वेनिस की, ये सब आपस में पूर्व और पश्चिम के जो कंट्री थे एक दूसरे के साथ व्यापार के तौर पर जुड़ गए। चलो अब बात आती है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर, कृषि, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और कॉमर्स यानी व्यापार। एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन, कृषि है वो मेन काम था भाई, ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन इन द न्यूली कॉन्क्वर्ड टेरिटोरी। जो नई कॉन्क्वर्ड की गई थी टेरिटोरी, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कृषि था। द इस्लामिक स्टेट मेड नो चेंज इन दिस, इस्लामिक जो स्टेट था उसने इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया। लैंड वॉज ओन बाई बिग एंड स्मॉल पीजेंट एंड इन सम केसेस बाई द स्टेट। जो ज़मीन थी वो लगभग छोटे बड़े किसानों के द्वारा उनको जैसे मिल गई, कुछ एक राज्य की तरफ भी थी। इन इराक एंड ईरान लैंड एग्जिस्टेड इन फेयरली लार्ज यूनिट कल्टिवेटेड बाई पीजेंट। ईरान और इराक के अंदर क्या था, मैक्सिमम ज़मीन की जो इकाई थी वो किसानों के द्वारा बोई जोती जाती थी। The state owner collected tax in behalf of the state during the Sasani as well as Islamic period. In area that had moved from a pastoral to a settled agriculture system. Mainly यहाँ पर एक चरागाह भी होते थे जो settled agriculture के साथ साथ काम है वो करते थे। Land was the common property of the village. Finally, big state that were abandoned by their owner after the Islamic conquest were acquired by the state and handed over mainly to the Muslim elite of the empire, particularly member of the Khalifa family. मैक्सिमम क्या था कि जो राज्य की जो भी संपत्ति थी ना वो सारे मुसलमानों के हाथ में थी, खास तौर से जो खलीफा के उत्तराधिकारी थे वो। The state had overall control of agricultural land, driving the bulk of its income from land revenue.
Once the conquests were over, the land conquered by Arab that remained in the hands of the owner were subject to a tax. टैक्स जो लिया जिसको क्या बोलते थे, खराज, which varied from half to a fifth of the produce according to the condition of cultivation. मतलब आधे से लेके और 5वें हिस्से तक लिया जाता था. On land held cultivated by Muslim, the tax levy was 1/10 usur of the produce. When non-Muslims started to convert to Islam to pay lower tax, this reduced the income of a state. ये मतलब मेन उस समय राज्य की आय थी. जैसे मुस्लिम जो कैंडिडेट होते थे उनसे तो 1/10 हिस्सा लिया जाता था, और जो इस्लाम स्वीकार करते उनसे भी लो टैक्स है वो लिया जाता था, जिसको उसर बोलते थे. टू एड्रेस द शॉर्टफॉल, द खलीफा फर्स्ट discouraged conversion and later adopted a uniform policy of taxation. क्या हो गया कि धीरे धीरे ऐसे टैक्स आना कम हो गया. मैक्सिमम जनता क्या बन गई, मुस्लिम बन गई, तो एक बीच की पॉलिसी निकाल दी गई. द स्टेट अथोराइज इट्स ऑफिशियल टू क्लेम देयर सैलरी फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेवेन्यू फ्रॉम टेरिटोरी कॉल्ड इक्ता रेवेन्यू असेसमेंट. रेवेन्यू का एक असेसमेंट किया तैयार, बीच का वो निकाल दिया कि भाई इतने तो सबसे लिया ही जाएगा. एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी वेंट हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. जो कृषि का जो प्रोस्पेरिटी थी ना, वो राजनीतिक स्टेबिलिटी के ऊपर आधारित थी. इन मैनी एरिया स्पेशली इन द नील वैली द स्टेट सपोर्ट इरिगेशन सिस्टम. जैसे नील जो घाटी थी उसमें मेनली राज्य है उस सिंचाई के सिस्टम को क्या करता था, सपोर्ट है वो करता था. द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड कैनाल एंड द डिगिंग ऑफ वेल ऑफन इक्विप्ड विद द वाटर व्हील और नोरी. यानी कि सिंचाई के जो सिस्टम थे, जैसे नहर खुदवाना, कुएं खुदवाना, इस तरह की व्यवस्था वो करते थे. ऑल ऑफ विच वर क्रूशियल फॉर गुड हार्वेस्ट. अच्छे मतलब फसलों की पैदावार है वो होती थी. Islamic law gave tax concession to people who brought land under cultivation. इस्लामिक जो कानून था वो एक चीज़ और भी करता था, जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कृषि क्षेत्र को अपने अधीन करता ना, उसको भी टैक्स में रिबेट है वो मिलती. थ्रो पीजेंट इंस्टिव एंड स्टेट सपोर्ट कल्टिवेबल लैंड एक्सपेंडेड एंड प्रोडक्टिविटी रोज इवन द अब्सेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज. कई बार ये भी होता है कि कृषि के जो प्रोडक्शन वो कम होते कारण कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें बदलाव होता, वो चीज़ें वहाँ पर लागू नहीं हो पाती. मैनी न्यू क्रॉप्स सच एज कॉटन, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, स्पेनिश एंड ब्रिंजल वर ग्रोन इवन एक्सपोर्ट टू यूरोप. मैक्सिमम चीज़ें क्या है कि यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट है वो की जाती थी. Islamic civilization flourished as the number of cities grew phenomenally. Many new cities were founded, mainly to settle Arab soldiers, who formed the backbone of the local administration. Among this class of Eurasian city called Misr, the Arabic name for Egypt. ठीक है, मैक्सिमम जो सिटी शहर थे उस टाइम पर मिस्र यानी इजिप्ट के आसपास बसे. वर कूफा एंड बसरा इन इराक एंड फुस्टन एंड कायरो इन इजिप्ट. ये नए नए शहर है ना भाई, ये उस दौरान स्टेब्लिश हुए. विद इन हाफ ए सेंचुरी ऑफ इट्स स्टेब्लिशमेंट एज द कैपिटल ऑफ अब्बासी खलीफा. बाद में क्या है कि लगभग अब्बासी जो खलीफा है उनकी राजधानियाँ भी बनी. द पॉपुलेशन ऑफ बगदाद हैड रीच अराउंड 1 मिलियन. 1 मिलियन के आसपास उसकी जनसंख्या है वो पहुँच गई. Alongside this city were older towns such as Damascus, Isfahan and Samarkand, which receive a new lease of life. ये जो पुराने शहर थे ना, ये भी अपने मतलब एक तरह से जीवन है उसको सुधार रहे थे. Their size and population surged
spurred by an expansion in life, their size and population, the production of food grain and raw materials such as cotton and sugar for urban manufacture. A vast urban network developed, linking one town with another and forming a circular.